Good evening, student. As we were doing the government budget chapter, today is the last lecture of the same chapter. Okay, so I hope already we have done the 6 chapters for the same. Okay, so this one is the last one. So let it start with the topic, that is balance and unbalanced budget. Okay, so today I'm going to discuss about the balance and unbalanced budget. So by the name it has been clear. Balance means which have nothing negative, nothing positive, and unbalanced which could be a negative as well as positive. Let us see what is positive and negative over here. Okay, so balanced budget. Balanced budget means whenever the government receipts is equal to government expenditure. It means government के खर्चे जो हैं गवर्नमेंट की इनकम के इक्वल हैं. सपोज द गवर्नमेंट इनकम इज़ 11 करोड़. ओके, सो द एक्सपेंडिचर इज़ ऑल्सो 11 करोड़. तो इसका मतलब है कि गवर्नमेंट जो है वो अपनी इनकम और एक्सपेंडिचर सेम कर रही है. So everything has some pros and cons. So same as it is, balanced budget has some merits as well as demerits. So one of the merit of balanced budget is no wasteful expenditure. Just take it yourself. अगर आपकी इनकम जो है वो 1000 रुपये है और आप खर्चा भी 1000 रुपये कर रहे हैं, so what is the meaning it? That you are not doing any wasteful expenditure. If you are doing any wasteful expenditure, then what would happen? Your income would be 1000 and your expenditure could be 1200. So same as it is happening with the government कि गवर्नमेंट कोई वेस्टफुल एक्सपेंडिचर नहीं कर रही है, इसलिए गवर्नमेंट की रिसिप्ट जो है उसके इक्वल है एक्सपेंडिचर के. It ensure financial stability in the economy. Okay, it means it's showing the fiscal discipline in the economy. Okay, so exactly balanced budget is showing that economically there is a stability. Finance wise the government is having the stability कि गवर्नमेंट को जितना पैसा आ रहा है गवर्नमेंट का उतना खर्चा हो रहा है. इट मीन्स जो आपका बजट है, जो इकॉनमी है, वो स्टेबल कंडीशन में है. ओके, द डीमेरिट्स ऑफ बैलेंस बजट. ओके, एज आई टोल्ड यू कि हर चीज़ के प्रॉन्स एंड कॉन्स होते हैं. तो डीमेरिट ऑफ बैलेंस बजट है इट डजंट गिव एनी सॉल्यूशन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट. Basically, when unemployment is related to lack of AD. Okay, as I told you that government is not doing any wasteful expenditure. अब government expenditure किन चीज़ों पर करती है? Government is doing expenditure on, as I told you so many times, if you will see my previous video, तो मैंने आपको बहुत बार बताया है कि government जो है वो डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर करती है. अगर गवर्नमेंट का बैलेंस बजट है, इसका मतलब गवर्नमेंट जो है वो एक्सपेंडिचर नहीं कर रही है. इसका मतलब है कि इकॉनमी में देयर इज़ नो इंक्रीज इन एडी. सो वेन एवर देयर इज़ नो एडी मीन्स डिमांड इज़ नॉट इंक्रीजेज. So ultimately the prices will not increases, it will decrease, which will offer a loss to the producer. तो प्रोड्यूसर क्या करेगा? लोगों को निकालना स्टार्ट करेगा, अनएम्प्लॉयमेंट इकॉनमी में एग्जिस्ट हो जाएगी. सो डीमेरिट्स ऑफ बैलेंस बजट इज इट इज़ नॉट गिविंग अ सॉल्यूशन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट बेसिकली व्हेन इट इज़ अ सिचुएशन ऑफ और व्हेन अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो लिंक हो एडी से. Second is demerit of balanced budget is there would be a less growth of less development economy. अब मैंने अभी आपको बताया कि गवर्नमेंट जो है वो अपने एक्सपेंडिचर नहीं कर रही है. इट मीन्स गवर्नमेंट इज़ नॉट डूइंग एनी इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर. एंड फॉर अ डेवलप्ड लेस डेवलप्ड कंट्री दिस इज़ द बेसिक थिंग द लेस डेवलप्ड कंट्री नीडेड. उन लेस डेवलप्ड कंट्री मीन्स डेवलपिंग कंट्री या अंडर डेवलप कंट्री में सबसे ज़्यादा ग्रोथ के साइन कब होते हैं? जब इन्वेस्टमेंट होती है. वेन एवर द गवर्नमेंट इज़ डूइंग एनी काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट इन टर्म्स ऑफ मेकिंग हॉस्पिटल, कॉलेज, schools, roads, anything. Okay, but government is not doing this, so ultimately lesser growth for less developed country. Okay, next is unbalanced budget. ओके, अनबैलेंस कुड बी सरप्लस बजट और डेफिसिट बजट. सरप्लस मतलब ज़्यादा, डेफिसिट मतलब कम. इसका मतलब है कि सरप्लस बजट है मतलब ज़्यादा. ज़्यादा क्या है? इनकम. सो व्हेन एवर रिसिप्ट्स इज मोर देन एक्सपेंडिचर. डेफिसिट बजट इज दैट मीन्स एक्सपेंडिचर इज मोर देन रिसिप्ट्स. एंड योर बैलेंस बजट इज क्रिएटिंग और इट ऑफन लीड्स टू डेफिसिट बजट. ज़्यादातर जो है डेफिसिट बजट हो जाता है बिकॉज ऑफ बैलेंस बजट. सो सरप्लस बजट मीन्स हमारी गवर्नमेंट की इनकम एक्सपेंडिचर से ज़्यादा है. लेट इट सी द मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ द सेम.
Okay, so merits of surplus budget. Okay, merits of surplus budget is, it means अब क्या है कि surplus budget का मतलब क्या हुआ कि गवर्नमेंट की इनकम ज़्यादा है. ओके, सो सरप्लस बजट मीन्स गवर्नमेंट जो है दैट इज इनकम ज़्यादा है. इसका मतलब गवर्नमेंट खर्चे नहीं कर रही है. ओके, सो सरप्लस बजट इज गुड वेन एवर देयर वुड बी अ सिचुएशन ऑफ इन्फ्लेशन. ओके, सो लेट इट अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट. इन्फ्लेशन कब होता है? इन्फ्लेशन कब होता है? जब हमारे प्राइजेस बढ़ जाते हैं. नाउ व्हाट इज द रीज़न ऑफ इंक्रीजिंग इन प्राइजेस? बिकॉज डिमांड इज इंक्रीजिंग. अब व्हाट इज द रीज़न ऑफ इंक्रीजिंग इन डिमांड? बिकॉज इनकम इज इंक्रीजिंग. एंड वाई द इनकम इज इंक्रीजेज? बिकॉज एक्सपेंडिचर इज इंक्रीजेज. सो आर यू गेटिंग दिस पॉइंट दैट अगर एक्सपेंडिचर बढ़ता है तो इनकम बढ़ती है, इनकम बढ़ती है तो डिमांड बढ़ती है, जिससे प्राइजेस बढ़ते हैं और जिससे इन्फ्लेशन होता है. Okay, so merits of surplus budget is that surplus budget is desired whenever the economy is battling with the situation of inflation due to excess AD. बट अब गवर्नमेंट क्या कर रहा है? AD नहीं कर रहा ज़्यादा. गवर्नमेंट के पास पैसा ज़्यादा आ रहा है, मतलब टैक्स से ज़्यादा पैसा आ रहा है, नॉन टैक्स रेवेन्यू से ज़्यादा पैसा आ रहा है. गवर्नमेंट खर्चे नहीं कर रही है. ठीक है, सो हेयर द गवर्नमेंट सरप्लस बजट जो है गवर्नमेंट क्या कर रही है? AD इज़ लोअर्ड. Okay, on account of rise in revenue collection by the government and fall in government expenditure. Fine. One of the demerit, okay, that is of surplus budget. ओके, अब सरप्लस बजट है तो आप सोचोगे कि अच्छा ही तो है, गवर्नमेंट की इनकम ज़्यादा है और एक्सपेंडिचर कम है, तो दिस इज़ गुड. नो, दिस इज़ ऑल्सो नॉट गुड फॉर द इकॉनमी बिकॉज डीमेरिट इज इट विल क्रिएट डीफ्लेशन इन द इकॉनमी. इसका मतलब है कि गवर्नमेंट खर्चे नहीं कर रही है, गवर्नमेंट इज़ नॉट डूइंग एनी एक्सपेंडिचर. अब गवर्नमेंट जब खर्चा नहीं करेगी तो व्हाट वुड हैपन? इट विल लोअर द लेवल ऑफ AD. एग्रीगेट डिमांड जो है वो कम हो जाएगी. सो विच विल लीड टू डिप्रेशन, लीड टू अनएम्प्लॉयमेंट एंड इट विल फाइनली लीड टू लो लेवल इक्विलिब्रियम ट्रैप. सो ड्यूरिंग डिफ्लेशन सरप्लस बजट इज़ नॉट ओके, और यू कैन से दैट कि सरप्लस बजट डिप्रेशन क्रिएट करता है इकोनॉमी में. तो finally what you are going to understand is whenever the government is increasing their expenditure, then there would be a inflation in the economy. Whenever there would be a lesser expenditure by the government, so it will create depression in the economy. Next and last is deficit budget. Deficit budget means when expenditure is more than receipt. अब खर्चे तो हो गए 11 और इनकम हो गई 8, तो मतलब क्या हुआ कि आपकी पॉकेट से जो है सारा पैसा निकल चुका है और आपके ऊपर बोरिंग ज़्यादा हो गई है. सो मेरिट ऑफ दिस इज दैट दिस बजट इज हेल्पफुल इन डिप्रेशन, टू ओवरकम द डिप्रेशन. ओके, बिकॉज अब देखिए गवर्नमेंट खर्चे ज़्यादा कर रही है. एज आई टोल्ड यू कि गवर्नमेंट अगर खर्चा करेगी तो खर्चा किस पे करेगी? गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट खर्चा करेगी. तो हमारी डिप्रेशन की सिचुएशन में वी नीड इन्वेस्टमेंट. जितनी इन्वेस्टमेंट आएगी दैट इज़ गुड फॉर द इकोनॉमी. सो हेल्पफुल इन डिप्रेशन बिकॉज डिक्रीज इन इन्वेस्टमेंट, डिक्रीज इन AD. एंड हाउ द गवर्नमेंट इज डूइंग इट? बाय गवर्नमेंट इंक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और इनडायरेक्टली बाय पीपल थ्रू इन्वेस्टमेंट एंड कंजप्शन. लास्ट इज डीमेरिट. ओके, इट इज़ नॉट डिजायर्ड इन द पीरियड ऑफ इन्फ्लेशन. अब इन्फ्लेशन ओके, अब क्या हो रहा है? खर्चे ऑलरेडी बढ़ रहे हैं. अब खर्चे बढ़ रहे हैं मतलब एक्सपेंडिचर इज इंक्रीजिंग. सो if expenditure is increasing means demand is increasing, so what would happen? The prices will increase, and as I told you earlier that it will create a inflation. So during inflation deficit budget is not desired. Okay, because inflation is a situation when AD is more than AS at full employment, जहाँ पर output cannot increase, output को आप बढ़ा नहीं सकते हैं. Fine. Just keep it in mind one thing as I written over here. Surplus budget is helpful during inflation. Demerit deflation it's not okay. Merit of deficit budget is during deflation it is helpful, and demerit it is not desired during inflation. तो आप ये 4 वर्ड्स याद कर लेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि what are the benefit and demerits of this
method. Okay, and last is the important formula at a glance. Already have written in the previous video, already have discussed about all these formula. Okay, so I'm not wasting much of your time over here. Okay, so just repeating the formula, just learn all this formula. Why I have written all the formula over here? So that numerical can be easily solved by you. So just go through all these formula. Revenue deficit is revenue expenditure minus revenue receipt. Fiscal deficit is equal to total expenditure minus total receipt excluding borrowings. Or you can say that FD is equal to RD plus capital receipt minus non-debt creating capital receipt. If only the total borrowing are given, then FD is equal to borrowing. अगर आपको न्यूमेरिकल में सिर्फ बोरिंग दे रखा है तो आपका आंसर क्या आएगा? Fiscal deficit is equal to borrowing. Already I have discussed about it. Don't worry about it. Fiscal deficit is equal to same here that is revenue expenditure minus revenue receipt plus capital expenditure minus capital receipt excluding borrowings. Okay, and last but not the least is primary deficit. So last formula of primary deficit is fiscal deficit and minus interest payment. So congratulations students, we have completed this chapter. Thank you students.